Welcome to the third week lectures of the course Fundamentals of Programming. Before going to start our next lecture, let's have a look what we studied in the last lecture. In the previous lecture, under a C++ program, we covered different topics like comments, preprocessor directives, main function, with the introduction of the functions, how functions work in the programming, their types, their return types, and then we did in detail discussed when we need to use the return type or return instruction and when we don't need to. We also covered the cout instruction as the output instruction. In this lecture as well, we are going to continue with the cout instruction in more details. In the previous lecture, we also discussed different data types and the different variables with different data types. Let's start our today's lecture. In today's lecture, we are going to cover different concepts like keywords, input-output instructions, escape sequence, variables input, output, then using variables for the arithmetic operations, and much more details of the arithmetic operations in the programming. Then in the last, we are also going to cover the data conversion concept in the variables or in the programming. Let's start our lecture with the concepts of keywords and reserved words. As we discussed earlier that like in every language we have some words. Using those words we create different sentences, and our sentences have some specific meanings. Like every other language, in the programming languages also we have some keywords. Every word has a specific meaning and or the specific usage with respect to the program, operating system, or the machine you are using. In C++, we have different keywords. Some of the keywords are listed in this table like auto, break, case, char, constant, and many more. Some of them you already used in your program. In the first program we started in the last lecture, for example, the main is also a keyword which is a function, and also some preprocessor directives like include or different other. So these words have some fixed words. We cannot use these words as the variable names because they are reserved words. They are reserved for a specific meaning. These small alphabets you cannot use or change it into uppercase. For example, the keyword break, you cannot use B as the capital or any of the alphabet as the capital for the keywords. Now let's discuss something about our input and output instructions. In C++, we have different input instructions for different data types, especially for the strings and the characters. But for usually the most common C++ input instruction is cin. Cin is same as the cout instruction. Cin instruction is the instruction we use to take some input from the keyboards to the variables. जब भी आपने कीबोर्ड से कोई वैल्यू लेके वेरिएबल में सेव करनी हो या यूज़र से आपने कोई वैल्यू लेनी है और आपने उसके रिस्पेक्टिव आगे अपने प्रोग्राम को रन करना है, तो आप cin के इंस्ट्रक्शन के थ्रू अपने प्रोग्राम में अपने वेरिएबल्स के अंदर डाटा इनपुट करवा सकते हैं. यू कैन सी दिस इंस्ट्रक्शन एज रिटन हेयर. आप cin लिखेंगे, cin कीवर्ड है. cin कीवर्ड लिखने के बाद आपके पास दो क्लोजिंग यू कैन से एंगल ब्रैकेट्स हैं. क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स को आप याद किस तरह रख सकते हैं कि आपकी इन एंगल ब्रैकेट्स की डायरेक्शंस टूवर्ड्स वेरिएबल्स है कि एक एरो बन रहा है किसकी तरफ, वेरिएबल के नाम की तरफ वेरिएबल बना है. इसका मतलब है जो चीज़ कीबोर्ड से एंटर होनी है वो किस में सेव होनी है, इस वेरिएबल में. आइडेंटिफायर यहाँ पे लिखा जाएगा, मीन्स वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिखेंगे और कीबोर्ड से जो भी डाटा एंटर होगा वो इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगा. आपके पास ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपने कीबोर्ड को लिमिट कर सकें कि आपका कीबोर्ड अगर इंटीजर वेरिएबल है तो सिर्फ नंबर सेव हो रहे हों. अगर आपके पास वेरिएबल फ्लोट है तो उसके अंदर सिर्फ फ्लोट डाटा सेव हो रहा हो, या कैरेक्टर वेरिएबल है तो उसमें कैरेक्टर सेव हो रहा हो. इस तरह का आपके पास कोई मैकेनिज़्म नहीं होता. आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली कुछ कन्वर्जन्स करके ज़बरदस्ती इस वेरिएबल के अंदर फिट कर देता है. फॉर एग्जांपल, ये जो आइडेंटिफायर है ये इंटीजर है, लेकिन आपने कीबोर्ड से एंटर कर दिया है ए कोई आपके पास नंबर नहीं है, लेकिन आपने उसको
एक ऐसे वेरिएबल में सेव करना है जो इंटीजर्स को सेव कर सकता है, मींस होल नंबर्स को सेव कर सकता है। तो उसके लिए वो ए को कन्वर्ट कर देगा टू सम यूजिंग सम कन्वर्जन्स इनटू दिस वेरिएबल टाइप, किसी नंबर में कन्वर्ट कर देगा और वो नंबर इसमें सेव हो जाएगा। ऑब्वियसली हमारी आउटपुट करेक्ट नहीं आएगी, तो हम इसकी करेक्शन के लिए कि क्या इनपुट्स एंटर हुई हैं बाद में डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग हम ये सपोज़ कर रहे हैं कि जो चीज़ हम लोगों ने यूज़र से कही है वो यूज़र करेक्ट डाटा ही एंटर कर रहा है, और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर डिफरेंट लिमिट्स या कंडीशंस लगा के वेरिफिकेशन का काम करेंगे जब हम डिफरेंट कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सीख लेंगे। Similar to the input instructions, we also have one common output instruction in C++, that is cout. Cout की instruction बहुत common है for C++ प्रोग्रामिंग। आपने स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले करना है, कुछ भी आउटपुट शो करनी है, तो आप cout इंस्ट्रक्शन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। cout इंस्ट्रक्शन को यूज़ करने का मेथड क्या है आपके पास? यू राइट cout आपके पास कीवर्ड है, देन द एंगल ब्रैकेट्स बट द ओपनिंग ब्रैकेट्स। आप इन ब्रैकेट्स को कैसे याद रख सकते हैं कि इनपुट के लिए कौन सी ब्रैकेट्स हैं और आउटपुट के लिए कौन सी ब्रैकेट्स हैं? इसके लिए एक हिंट ये हो सकता है कि इनकी डायरेक्शन किस तरफ है। सी इनमें कीबोर्ड से डाटा आ रहा होता है और वेरिएबल के अंदर जा रहा होता है, तो इसकी डायरेक्शन वेरिएबल की तरफ है, टूवर्ड्स वेरिएबल है, ताकि ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि डाटा वेरिएबल के अंदर एंटर हो रहा है। सिमिलरली सी आउट केस में क्या है कि कोई डाटा जो वेरिएबल में है, जो प्रोग्राम में है, वो स्क्रीन की तरफ आउट हो रहा है, आपके डिवाइस की तरफ आउट हो रहा है, तो ये वेरिएबल से बाहर की तरफ डायरेक्ट कर रहा है कि वेरिएबल से बाहर निकल के ये स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप इन एरोज़ की डायरेक्शंस के रिस्पेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल्स के वेरिएबल के अंदर डाटा जा रहा है या वेरिएबल से डाटा बाहर आ रहा है, आप इन एरोज़ को याद रख सकते हैं। सो वी हैव वन कॉमन इनपुट इंस्ट्रक्शन सी इन, and then we have one common instruction that is cout. इन सी इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शंस के लिए को हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये किस तरह काम करती हैं। आउटपुट इंस्ट्रक्शन को फॉर्मेट करने के लिए अगर आपने आउटपुट इंस्ट्रक्शन में कुछ चेंजेस करनी है, फॉर एग्जांपल आपने कोई इंस्ट्रक्शन है दैट इज़ हेलो पाकिस्तान, आपने हेलो पाकिस्तान लिखना है लेकिन 2 लाइंस में लिखना है, मींस एक लाइन में हेलो लिखा हुआ है और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में पाकिस्तान लिखा है, तो ये कैसे काम करेगा? आपके पास कुछ एस्केप सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं जिनको यूज़ करके आप अपनी स्ट्रिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं, स्ट्रिंग्स को चेंज कर सकते हैं। कुछ कॉमन एस्केप सीक्वेंस हैं दैट इज़ \n एंड \t। जितने भी एस्केप सीक्वेंस होते हैं वो \/ के साथ यूज़ किए जाते हैं। मींस अगर आपकी स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि cout इंस्ट्रक्शन के अंदर इन डबल कोट्स के दरम्यान में जो कुछ भी लिखा होता है वो एज इट इज़ स्क्रीन पे नज़र आ जाता है। लेकिन अगर किसी अल्फ़ाबेट के साथ \/ लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये एज इट इज़ स्क्रीन पे नज़र नहीं आना, बल्कि इसने कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मेटिंग ऑफ योर टेक्स्ट। \n का मतलब है n इज़ फॉर द नेक्स्ट लाइन, ये नेक्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। आपका कंपाइलर आपकी स्ट्रिंग को स्क्रीन पे प्रिंट करना शुरू करेगा HELLO स्पेस, और जब स्पेस के बाद जब उसे \n मिलेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि उसने आउटपुट स्क्रीन पे नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाना है। तो जब उसे \n मिलेगा वो नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा और उसके बाद फिर आगे से प्रिंटिंग स्टार्ट करेगा, दैट इज़ स्पेस PAKISTAN, और उसके बाद वो उसको एंड कर देगा। सिमिलरली वी हैव अनदर escape sequence that is \t। \t is for the tab। जैसे हम लोग वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो टाइपिंग करते हुए अगर हम टैब प्रेस करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर स्पेसेस वो दरम्यान में दे देता है। तो अगर आपने अपनी स्क्रीन पे भी जब कुछ आप डिस्प्ले करवा रहे हैं और उस डिस्प्ले में आपने कुछ स्ट्रिंग्स के दरम्यान में स्पेस देनी है तो आप उसके लिए \t यूज़ कर सकते हैं। आपके प्रोग्राम में जब ये इंस्ट्रक्शन रन होगी cout HELLO \t PAKISTAN, तो ये एग्जीक्यूट भी इसी तरीके से होगी कि पहले हेलो प्रिंट होगा और हेलो प्रिंट होने के बाद जब कंपाइलर देखेगा कि उसके पास \t आया है तो वो \t को एज इट इज़ स्क्रीन पे प्रिंट करवाने की बजाय वो उसकी जगह स्क्रीन पे कुछ स्पेस क्रिएट कर देगा और उसके बाद बाकी के सारी स्ट्रिंग्स को डिस्प्ले कर देगा। एस्केप सीक्वेंस यूज़ करके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल बेसिक प्रोग्राम जिसमें हमने कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड कर ली हैं। फर्स्ट IO स्ट्रीम जो इनपुट आउटपुट को हैंडल करेगी, मींस cout इंस्ट्रक्शंस को हैंडल करेगी।
देन यूजिंग नेम स्पेस std, तो जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं C++ के, ये उन सबको हैंडल करेगा। देन वी हैव द मेन फंक्शन। ऑब्वियसली हमें हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होना ज़रूरी है, क्योंकि वही एक्चुअली एग्जीक्यूट होता है बाय कंपाइलर। जो पार्ट आपके मेन का पार्ट नहीं होता, जो भी कोड आपके मेन का पार्ट नहीं होता, वो एग्जीक्यूट भी नहीं होगा। मेन के लिए हमने रिटर्न टाइप क्या यूज़ की है, दैट इज़ इंटीजर। जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी, इफ़ आवर रिटर्न टाइप इज़ इंट, देन वी मस्ट हैव टू इंक्लूड द रिटर्न इंस्ट्रक्शन एंड व्हाट वी नीड टू रिटर्न अ नंबर। आपने क्या रिटर्न करना है, एक इंटीजर रिटर्न करना है, दैट कैन बी एनी नंबर। ज़ीरो इज़ द नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन फॉर नो एरर, तो हम नॉर्मली ज़ीरो रिटर्न करते हैं। यू कैन ऑल्सो रिटर्न 1 2 3 4 और एनी काइंड ऑफ एरर। ये वैल्यू किसको रिटर्न होती है, अगेन टू द कंपाइलर। इसका हमारी इनपुट, हमारी आउटपुट या फिर यूज़र से कोई कंसर्न नहीं है, इट इज़ कम्प्लीटली फॉर द कंपाइलर। आइदर यू कैन यूज़, इंट की जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ वॉइड। वॉइड मीन्स कि नथिंग, हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, और रिटर्न लाइन को आप कमेंट कर दें कि आप कुछ भी रिटर्न, इसलिए लाइन एग्जीक्यूट अब नहीं होगी, तो आपके पास ये रिटर्न हो रहा है। बट इन द मेजर कंपाइलर, जो आपके पास रीसेंट कंपाइलर्स हैं, वो वॉइड को प्रेफर नहीं करते और उसकी जगह इंटीजर के लिए आपके लिए मस्ट रिक्वायर करते हैं। तो आपके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट है कि आप इंटीजर रिटर्न टाइप रखें और रिटर्न ज़ीरो करवा दें, मीन्स नो एरर अकर। इन दिस मेन फंक्शन हमारे पास हमारा एक सी आउट, एक आउटपुट इंस्ट्रक्शन है, दैट इज़ सी आउट। ये किस तरह से काम करती है, ये आपके पास इस तरीके से काम करेगी कि आपके पास ये पहले हेलो डिस्प्ले करेगी, देन वी हैव एन एस्केप सीक्वेंस दैट इज़ \n, और \n के एस्केप सीक्वेंस के बाद हमारे पास है दैट कुछ और स्ट्रिंग, दैट इज़ पाकिस्तान। तो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ नज़र आएगा, हेलो, देन इट कम्स टू द नेक्स्ट लाइन एंड देन पाकिस्तान। हम इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमारे पास हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट आती है या नहीं आती। ओके, इट विल टेक सम टाइम क्योंकि ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हो रहा है। ओके, सो दिस इज़ आवर आउटपुट। हमारे पास हेलो लिखा हुआ है, हेलो के बाद कुछ स्पेस है, ओबियसली वो ओ के बाद स्पेस भी होगी, देन \n, वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर दिया है। नेक्स्ट लाइन के बाद उसने क्या डिस्प्ले करवाया है, एक स्पेस, और स्पेस के बाद पाकिस्तान लिखा हुआ। इसके बाद उसने टर्मिनेट कर दिया है, और ये इंस्ट्रक्शन जो उसके आगे लिखी हुई है, दैट इज़ प्रोग्राम एंडेड, ये आपके कंपाइलर की तरफ से एग्जीक्यूट जनरेटेड है, ये हमारी तरफ से जनरेटेड नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पाकिस्तान के बाद भी एक स्पेस आ जाए, उसके बाद भी जो कुछ लिखा हुआ है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाए, तो हम एक और एस्केप सीक्वेंस भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, दैट इज़ \n। इससे हमें क्या फ़ायदा हो जाएगा कि आपकी आउटपुट में ये डिफरेंस आ जाएगा कि आपके पास लिखा हुआ आएगा हेलो पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद जो कुछ भी डिस्प्ले होना है वो नेक्स्ट लाइन से डिस्प्ले हो जाएगा। अगर आप इसको रिमूव कर देते हैं, इस एस्केप सीक्वेंस को, हेलो/पाकिस्तान, तो आपकी आउटपुट किस तरीके से आएगी, इन द सिंगल लाइन, सेम लाइन, हेलो स्पेस पाकिस्तान। तो ये आपके पास सेम लाइन में इसकी आउटपुट जनरेट हो गई है। अगर आप अपनी प्रोग्राम में, अपने कोड के अंदर फॉर एग्जांपल \n लगाने की बजाय एंटर प्रेस कर देते हैं, देन दैट इज़ नॉट द करेक्ट मेथड। ये आपके पास लाइन का सीक्वेंस टूट गया है, आपकी इंस्ट्रक्शन दो इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट हो गई है। अब कंपाइलर को क्या लग रहा है कि ये एक अलग इंस्ट्रक्शन है और ये एक अलग इंस्ट्रक्शन है, वो ये नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहा कि आपके यहाँ से डबल कोट स्टार्ट हुए हैं और वो नीचे तक कंटिन्यू हो रहे हैं। सो आपने यहाँ पे एंटर प्रेस नहीं करना। अगर आप अपनी स्क्रीन पे चाहते हैं कि वो मल्टीपल लाइंस में आए, तो आप क्या यूज़ करेंगे, \n यूज़ कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट लाइन, \t यूज़ कर सकते हैं फॉर द स्पेस। हम \t के साथ एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमारे पास आउटपुट में क्या डिफरेंस आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब ये एक सिंगल स्पेस की आने के बजाय एक टैब आ गई है, मीन्स ज़्यादा स्पेसेस हेलो और पाकिस्तान के दरमियान में क्रिएट हो गई हैं। जिस तरीके से आपके पास ये एस्केप सीक्वेंस \n, हर लाइन के बाद नॉर्मली हम अपनी स्क्रीन में क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट करना चाह रहे होते हैं, तो आप \n की जगह एक और एस्केप सीक्वेंस का मेथड यूज़ कर सकते हैं यूजिंग अ कीवर्ड एंड एल एक ऐसा रिजर्व्ड कीवर्ड है जो नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये स्ट्रिंग्स मींस इन डबल कोट्स के दरमियान में नहीं लिखा जाता। अगर डबल कोट्स के दरमियान में लिखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, इसे डबल कोट्स से अलग लिखना पड़ता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी सी आउट इंस्ट्रक्शन में अब दो तरह की चीज़ें हम सी आउट करवा रहे हैं। क्या सी आउट करवा रहे हैं, एक स्ट्रिंग सी आउट करवा रहे हैं, उस स्ट्रिंग के अंदर कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं, कुछ स्पेसेस हैं, कुछ एस्केप सीक्वेंस हैं।
एक और एस्केप सीक्वेंस है, एंड देन हम अपने पास क्या प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, एक एंडल करवाना चाह रहे हैं, एक नेक्स्ट लाइन ऐड करवाना चाह रहे हैं। लेकिन वो एंडल क्योंकि एक रिजर्व वर्ड है, एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, तो आपके पास ये उसका पार्ट नहीं है। जब आप अपनी सी आउट इंस्ट्रक्शन के अंदर एक से ज़्यादा डाटा को सी आउट करवा रहे होते हैं, तो आपने क्या मेथड यूज़ करना है कि आपने सी आउट के बाद एंगल ब्रैकेट्स के बाद एक चीज़ को आप सिर्फ सी आउट करवा सकते हैं। दैट कैन बी अ स्ट्रिंग, दैट कैन बी अ वेरिएबल, दैट कैन बी अ कांस्टेंट। कोई एक चीज़ रिप्रेजेंट सी आउट करवाएंगे, और अगर आपने फिर उसी के साथ ही कुछ और सी आउट करवाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोबारा से एंगल ब्रैकेट्स उसी के साथ यूज़ करके और फिर आगे आप डिफरेंट वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 2 3 4। तो अब आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ आ जाएगा, आपकी ये सी आउट की ऑपरेशन कैसे काम करेगा कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा हेलो, देन स्पेस के बाद लिखा हुआ आएगा पाकिस्तान, देन बैकस्लैश n की वजह से वो नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट कर जाएगा। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ आएगा 1 2 3 4 और उसके बाद प्रोग्राम एंड कर देगा। 1 2 3 4 के बाद मैं ये प्रोग्राम एंडेड वाली लाइन को भी अगर नेक्स्ट लाइन में शो करना चाहती हूँ तो मैं इसके एंड पे ऐड कर सकती हूँ एंड l, तो ये उसके साथ नेक्स्ट लाइन को ऐड कर देगा। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आती है। ये देखें आपके पास आया हेलो, देन स्पेस हेलो, उसके बाद स्पेस, फिर पाकिस्तान, देन बैकस्लैश n की वजह से वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया। नेक्स्ट लाइन पे उसने क्या शो करवा दिया, ये कांस्टेंट 1 2 3 4, और उसके बाद आपके पास प्रोग्राम, उसके बाद फिर एंडल की वजह से वो नेक्स्ट लाइन पे आ गया और हमारी इंस्ट्रक्शन ख़त्म हो चुकी थी। फिर रिटर्न 0 था, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया, और प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने की वजह से हमारे पास ये कंपाइलर जनरेटेड लाइन भी हमारी आउटपुट का पार्ट बन गई है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल ऑफ सम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस। हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाह रहे हैं जिस प्रोग्राम के थ्रू हम डिफरेंट वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकें, उसके बाद उन वेरिएबल्स में इनपुट ले सकें यूज़र से, और उसके बाद उन वेरिएबल्स को हम आउटपुट करवा सकें स्क्रीन के ऊपर। बिफोर राइटिंग अ प्रोग्राम लेट्स रिवाइज सम फ्यू स्टेप्स कि जब भी हम एक प्रोग्राम बनाने लगेंगे तो हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप, हमें इंक्लूड हेडर फाइल्स, हमें हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम और यूजिंग नेम स्पेस std यूज़ करना पड़ेगा फॉर द वेरी बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ अ C++ प्रोग्राम। देन वी कैन स्टार्ट विद द मेन फंक्शन। वी हैव टू डिक्लेयर अ मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को हम स्टार्ट करेंगे किस तरीके से, इंट मेन और उसके आगे स्मॉल ब्रैकेट्स, और उसके बाद हम उसको मेन फंक्शन की बॉडी क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे, और इन कर्ली ब्रैकेट्स के दरम्यान में जहाँ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हम अपने रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्टिव लिखेंगे, एक इंस्ट्रक्शन मस्ट हमें ऐड करनी पड़ेगी बिल्कुल आखिर में एज अ लास्ट इंस्ट्रक्शन, दैट इज़ रिटर्न 0, जो इन ब्रेसेस के अंदर हमें ऐड करनी पड़ेगी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस बेसिक प्रोग्राम। Okay, this is our program in which we first included hash include iostream using namespace std। सबसे पहले हमने अपनी header files ऐड कर ली हैं, अपनी libraries को include कर लिया है। Then we started our main function int main small brackets, ये हमने main function start किया, और उसके बाद हमने अपनी main function की body create करनी है, तो हमने एक small bracket start की और एक उस small bracket को फिर कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट की, और कर्ली ब्रैकेट को फिर हमने लास्ट में उसको क्लोज भी कर दिया जहाँ पे हमारा मेन फंक्शन एंड हो रहा है। अब जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने लिखनी है वो बिटवीन दीज कर्ली ब्रैकेट्स लिखनी है। हम अपने इस प्रोग्राम में डिफरेंट डाटा टाइप्स के डिफरेंट वेरिएबल्स क्रिएट करना चाहते हैं, उनको इनपुट करना चाह रहे हैं और फिर उनकी आउटपुट डिस्प्ले करना चाह रहे हैं। लेट्स टेक 3 वेरिएबल्स। हम 3 वेरिएबल्स बना लेते हैं। 1 वेरिएबल ऑफ इंट, इसका मतलब है जो होल नंबर्स को सेव करने के लिए यूज़ होगा, जिसके अंदर हम कोई होल नंबर सेव कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ इट्स वेरिएबल नेम, ये इस वेरिएबल का नाम है। इसके अंदर वैल्यू क्या सेव होगी वो हम कीबोर्ड से लेंगे, वो हम यूज़र से लेंगे कि जो इसमें वैल्यूज़ को सेव करना चाह रहे हैं। देन वी हैव अनदर वेरिएबल जिसका नाम है ch। इस ch वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, 4, मीन्स कैरेक्टर वेरिएबल हमने क्रिएट किया है। 4 इज़ द डाटा टाइप एंड ch इज़ द वेरिएबल नेम। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम है डेसिमल नंबर। उसके अंदर नंबर जो सेव होगा वो यूज़र डिफाइंड होगा, ये हमारे वेरिएबल का नाम है। और उसके अंदर लिए हमने डाटा टाइप क्या रखी है, दैट इज़ फ्लोट, मीन्स हमारे पास कोई भी पॉइंट्स वाला नंबर इसके अंदर सेव हो सकता है। फर्स्ट टास्क हमारे पास क्या है कि हमने ये डाटा इनपुट करवाना है यूज़र से, मीन्स हमने यूज़र से कहना है कि वो हमारे पास एक नंबर एंटर करे, एक कैरेक्टर एंटर करे और एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंटर करे।
हमारी इनिशियली जैसे हमने डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन किया, अगर हम अपनी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी शो नहीं करेंगे तो यूज़र को समझ नहीं आएगी, यूज़र को हमें गाइड करना पड़ेगा कि हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। प्रोग्राम में डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हो रही होंगी, प्रोग्राम में आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो आपको यूज़र को बताना पड़ेगा कि आप यूज़र से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यूज़र को मैसेज डिस्प्ले करवा के। हमने एक यूज़र को स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले करवाना है कि प्लीज़ एंटर अ होल नंबर, एक होल नंबर एंटर करे। तो हमने उसके लिए क्या कर दिया, हमने एक सी आउट की इंस्ट्रक्शन यूज़ की है और उसके अंदर मैसेज क्या शो कर दिया है, एंटर अ होल नंबर। हमने यूज़र से कहा है कि वो एक होल नंबर को एंटर करे और उसके बाद हम होल नंबर को एंटर किस तरह करवाएंगे, यूजिंग सी इन स्टेटमेंट। सी इन की एरोज़ की डायरेक्शन किस तरफ होगी, वेरिएबल्स के नाम की तरफ, वेरिएबल के अंदर, और उसके आगे हमने वेरिएबल 1 लिख दिया है। अब ये जिस तरीके से रन होगा कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा एंटर अ होल नंबर, और उसके बाद सीन एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो वेट करती है कि जब तक कीबोर्ड से कुछ एंटर नहीं कर दिया जाता। हम जब तक कीबोर्ड से कोई यूज़र वैल्यू एंटर नहीं करेगा, ये इंस्ट्रक्शन, ये प्रोग्राम आपका यहाँ पे रुका रहेगा। जैसे ही यूज़र कोई नंबर एंटर करने के बाद एंटर प्रेस करेगा, वो वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाएगी और आपका प्रोग्राम नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाएगा। आप अपने पास चाहें तो डिफरेंट डाटा टाइप्स को, डिफरेंट वेरिएबल्स का डाटा इकट्ठे भी एंटर करवा सकते हैं। आपको सारे वेरिएबल्स को अलग अलग एंटर करवाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे हमने क्या करवाया है, हमने यूज़र को मैसेज दिया है एंटर अ कैरेक्टर एंड अ डेसिमल नंबर, कि हम दोनों चीज़ें इकट्ठे ही एंटर करवा लेते हैं कि बजाय उसको बार बार मैसेज देने के। हमने यूज़र को एक ही दफ़ा मैसेज दे दिया एंटर अ कैरेक्टर एंड अ डेसिमल नंबर, और हमने इसको सीन कैसे करवा दिया, सी इन। पहले चीज़ हम क्या सीन करवा रहे हैं, कैरेक्टर। इसका मतलब है यूज़र पहले कोई कैरेक्टर एंटर करेगा, मींस ABCD कोई कैरेक्टर एंटर करेगा, तो वो कैरेक्टर हमने किस में सेव करवाना है, अपने कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर। तो हमने सी इन, उसके बाद एरो, और उसके बाद कौन से वेरिएबल का नाम लिखा जिसकी डाटा टाइप कैरेक्टर है, CH। सेकंड यूज़र उसके बाद क्या एंटर करेगा, कोई डेसिमल नंबर एंटर करेगा, मींस 1.2 3.5 इस तरह का कोई नंबर एंटर करेगा। तो वो नंबर हमने किस में सेव करवाना है, दूसरे वेरिएबल में। आपने दोनों वेरिएबल्स को डिफरेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए उनके दरमियान भी दोबारा क्या यूज़ करनी है, दोबारा आपने एंगल ब्रैकेट्स को यूज़ करना है ताकि आपका कंपाइलर डिफरेंशिएट कर सके कि CH एक और वेरिएबल है और डेसिमल नंबर एक डिफरेंट वेरिएबल है। तो कीबोर्ड से यूज़र पहले एंटर करेगा, फॉर एग्जांपल मैंने S एंटर किया, अपने नाम का फर्स्ट डिजिट S एंटर किया, S किस में सेव हो जाएगा, CH के अंदर। उसके बाद मैंने एंटर प्रेस करने के बाद जब मैं करूँगी 3.5 और एंटर प्रेस करूँगी तो वो 3.5 किस में सेव हो जाएगा, इस डेसिमल नंबर के अंदर सेव हो जाएगा। अब हमने चेक करना है कि जो वैल्यूज़ यूज़र ने एंटर किए हैं क्या वो वाकई वेरिएबल्स के अंदर सेव हुई हैं या नहीं हुई। वो हम कैसे चेक कर सकते हैं, इन्हीं वेरिएबल को दोबारा सी आउट करवा के या स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा के। हम उसके लिए क्या कर देते हैं, हम लोगों ने स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाया है क्या, यूज़र हैज़ एंटर्ड, स्क्रीन पे एज इट इज़ ये लिखा हुआ आ जाएगा यूज़र हैज़ एंटर्ड फर्स्ट। उसके बाद क्या लिखा हुआ आएगा, होल नंबर इज़ इक्वल टू, ये एज इट इज़ स्क्रीन पे आएगा क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है। जो भी आप स्ट्रिंग डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो एज इट इज़ नज़र आ जाती है। उसके बाद हमने होल नंबर कहाँ पे सेव हुआ था, हमारे नंबर 1 के वेरिएबल में सेव हुआ था। तो हमने दोबारा एंगल ब्रैकेट्स डाली क्योंकि हमने ये अभी थोड़ी देर पहले सीखा है कि जब हम एक सी आउट में डिफरेंट चीज़ें सी आउट करवा रहे होंगे, डिफरेंट डाटा सी आउट करवा रहे होंगे, तो हम उनको डिफ्रेंशिएट किस तरीके से करेंगे, डिस्टिंग्विश किससे करेंगे, इन एंगल ब्रैकेट से डिस्टिंग्विश करेंगे। तो स्क्रीन पे लिखा हुआ है होल नंबर इज़ इक्वल टू, उसके बाद आपके पास एंगल ब्रैकेट्स और हमारे वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या है, नंबर 1। हम यहाँ नंबर 1 लिखेंगे, लेकिन स्क्रीन पे क्या शो होगा, इस नंबर 1 के अंदर जो भी डाटा यूज़र ने सेव करवाया था यूजिंग दिस सी इन स्टेटमेंट। इस सी इन स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए यूज़र ने जो भी वैल्यू इंसर्ट करवाई थी इस वेरिएबल के अंदर, वो वैल्यू आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ जाएगी। देन उसके बाद एंड का मतलब है स्क्रीन पे वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम में आपके पास आ जाती है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, दैट इज़ सी आउट। सी आउट हम क्या करवा रहे हैं, कैरेक्टर इज़ इक्वल टू, कैरेक्टर हमने किस में सेव करवाया था, CH के वेरिएबल में। तो हमने आगे वेरिएबल का नाम लिख दिया CH। वेरिएबल नेम्स को कभी भी डबल कोट्स में नहीं लिखा जाता, ये गलती आप मत कीजिएगा। शुरू में स्टूडेंट्स हर चीज़ को डबल कोट्स में लिखना शुरू कर देते हैं। वेरिएबल नेम्स कभी भी डबल कोट्स में नहीं लिखे जाएंगे। स्ट्रिंग्स को डबल कोट्स में लिखा जाएगा, मीन्स काइंड ऑफ सेंटेंसेस को डबल कोट्स में लिखा जाएगा जब आपने वो स्ट्रिंग्स, वो सेंटेंसेस एज इट इज़ यूज़ करने हो। तो हमने ये स्क्रीन पर एज इट इज़ दिखाना है तो हमने इनको डबल कोट्स में लिखा है।
लेकिन वेरिएबल के अंदर वैल्यू को, जो उसके अंदर वैल्यू सेव हुई हुई है, उसको हमने क्योंकि डिस्प्ले करवाना है तो हम इसको डबल कोट्स में नहीं लिखेंगे। अगर मैं इसको डबल कोट्स में लिख दूंगी तो मेरी स्क्रीन पर ये एज इट इज़ नज़र आ जाएगा, मीन स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा कैरेक्टर इज इक्वल टू CH। हालांकि हमें क्या कैरेक्टर दिखाना है, जो इस CH वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेव हुई हुई है, हमने वो शो करवानी है। देन सेम विद द डेसिमल नंबर, हमने स्क्रीन पे लिखा हुआ आएगा डेसिमल नंबर इज इक्वल टू, और उसके बाद हमने डेसिमल नंबर जिस वेरिएबल में सेव किया हुआ है उस वेरिएबल का नाम लिख दिया है। देन उसके बाद हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। और कंप्लीशन हमने किस तरीके से एंड किया है कि हमने एंड पे लिख दिया रिटर्न 0। ये रिटर्न 0 क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमने मेन से पहले एंड लिखा था कि ये फंक्शन रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। सो आवर प्रोग्राम इज़ कंप्लीटेड। ओके, नाउ लेट्स सी, हम अपने इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। दिस इज द प्रोग्राम, सम हेडर फाइल्स, 3 वेरिएबल्स डिक्लेरेशन, then you have some input instructions to input data in these variables, and then you want to display the data you have entered through the keyboard to these variables. Now let's run it. Okay, it's taking a bit time. Okay, so इसको मैं ड्रैग कर लेती हूँ। ये मेरी आउटपुट स्क्रीन है, तो मेरी आउटपुट स्क्रीन पे हम बारी बारी ऊपर से देख लेते हैं। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या हमारे पास रन होगी, सी आउट की, एंटर होल नंबर। तो हमारी स्क्रीन पे लिखा हुआ गया एंटर होल नंबर। अब इसके आगे कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहा बिकॉज इट इज़ वेटिंग फॉर द इनपुट। सी इंस्ट्रक्शन रन हो रही है और ये वेट कर रही है कि मैं कीबोर्ड से कोई नंबर एंटर करूँ। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके कोई नंबर एंटर कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 20 एंटर कर दिया, देन आई प्रेस्ड एंटर, तो ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव कर गया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या थी, एंटर अ कैरेक्टर एंड अ डेसिमल नंबर। स्क्रीन पे आ गया एंटर अ कैरेक्टर एंड अ डेसिमल नंबर, और उसके बाद एक सीन की इंस्ट्रक्शन है जो हमारे पास एक कैरेक्टर और एक डेसिमल नंबर का वेट कर रही है। फर्स्ट राइट अ कैरेक्टर, मैं एक कैरेक्टर यहाँ पे एंटर कर देती हूँ, लेट सपोज S, एंड प्रेस एंटर। उसके बाद मैं दोबारा एंटर कर देती हूँ, दैट इज़ अ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में हम 3.4 एंटर कर देते हैं एंड प्रेस एंटर। सो उसके बाद सारी की सारी इंस्ट्रक्शन क्योंकि सी आउट की थी तो वो सारी की सारी डिस्प्ले हो गई हैं। फर्स्ट क्या डिस्प्ले हुआ है, यूज़र हैज़ एंटर्ड, क्योंकि हमारी यही इंस्ट्रक्शन थी। देन वी रोट सी आउट इंस्ट्रक्शन होल नंबर इज़ इक्वल टू एंड नंबर 1 होल नंबर इज़ इक्वल टू 20। यही डिफरेंस आपको मैं एग्जैक्टली समझाना चाह रही हूँ कि इस प्रोग्राम में हमने लिखा है नंबर 1, हमने अपने वेरिएबल का नाम लिखा है, लेकिन ये वेरिएबल का नाम जहाँ पे भी लिखा होगा आपकी आउटपुट स्क्रीन पर और एग्जीक्यूशन में और कैलकुलेशन में, इसके अंदर जो वैल्यू है उस पर काम हो रहा होगा। नंबर 1 में हमने क्या सेव करवाया था, 21 से 20 सेव करवाया था। तो अब हम जहाँ पे भी नंबर 1 लिखेंगे उसका मीनिंग होगा कि हम 20 की बात कर रहे हैं। सिमिलरली आर कैरेक्टर इज इक्वल टू CH, प्रोग्राम में हमने लिखा है CH, लेकिन हमारे पास डिस्प्ले क्या हुआ है, वो कैरेक्टर जो हमने एंटर करवाया था दैट इज़ S, और उसके बाद डेसिमल नंबर इज़ इक्वल टू, जो हमारे पास डेसिमल नंबर है दैट इज़ 3.4, वो हमारे पास आप एंटर हो गया है हमारे वेरिएबल में और देन डिस्प्ले हो गया है। सो इस तरीके से हमने अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना, हमने वेरिएबल्स क्रिएट करना सीखा है, और वेरिएबल्स क्रिएट करने के बाद हमने उनको इनपुट और आउटपुट करना सीखा है। ओके, नेक्स्ट इज़ आवर सिंपल प्रोग्राम फॉर द एडिशन। हम अब इन वेरिएबल्स को फर्दर कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करना चाहते हैं कि कैसे हम इन वेरिएबल्स के ऊपर कैलकुलेशंस कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पिछले प्रोग्राम में 2 वेरिएबल्स बनाए, एक में हमने 20 सेव किया और दूसरे वेरिएबल में हमने 3.4 सेव किया। फॉर एग्जांपल हम इन दोनों वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, हम इनको इनकी एडिशन करना चाह रहे हैं, हम इनके ऊपर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर अ सिंपल प्रोग्राम ऑफ एडिशन। हम एक एडिशन का प्रोग्राम सीखते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से हम 2 वेरिएबल्स का डाटा आपस में ऐड कर सकते हैं प्रोग्राम के थ्रू, और उनका आउटपुट जो उनका रिज़ल्ट है वो हम स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। देन उन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा, मीन्स उनको वैल्यू देनी पड़ेगी। वेरिएबल्स डिक्लेयर करने में सिर्फ और सिर्फ आप वेरिएबल और उसका नाम और उसकी डाटा टाइप बता रहे होते हैं, और इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि आप उनको वैल्यू दे रहे हैं। इनिशियलाइजेशन 2 तरीक़ों से हो सकती है कि आप अपने प्रोग्राम में ही उनको डायरेक्टली कोई वैल्यू दे दें, या फिर आपके पास दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि जिस तरीके से अभी हमने इनपुट करना सीखा, हम सी इन स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कीबोर्ड से इनपुट करवा लें। ऑब्वियसली सीन्स के थ्रू इनपुट करवाना इज़ मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि अगर हम कीबोर्ड के थ्रू एंटर नहीं करवाएंगे और अब हम अपने
प्रोग्राम में फ़िक्स कर देंगे तो हमारा प्रोग्राम हमेशा उन स्पेसिफ़िक वैल्यूज़ के लिए चलेगा, चाहे वो हम 10 दफ़ा चलाएँ, 20 दफ़ा चलाएँ या 2000 टाइम्स उसको रन करें, हमारे पास वो सेम वैल्यूज़ के लिए एग्जीक्यूशन करेगा। लेट्स सपोज कंसीडर योर एग्जांपल ऑफ योर कैलकुलेटर। आप कैलकुलेटर पे अगर कैलकुलेटर हमेशा सिर्फ 2 + 20 ही करके दिखाएगा तो उस कैलकुलेटर का कोई यूजेज नहीं रहेगा। कैलकुलेटर का बेनिफिट ही तब है कि जब आप अपनी मर्ज़ी से उसमें डिफरेंट नंबर्स डिफरेंट टाइम पे एंटर कर सकते हैं और आपके पास उन डिफरेंट न्यू नंबर्स के रिस्पेक्टिव आउटपुट डिस्प्ले हो जाती है। हमने पिछले प्रोग्राम में क्योंकि सीन के थ्रू इनपुट करना सीखा है, तो इस प्रोग्राम में फॉर द टाइम बिंग हम किस तरीके से सीखते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को प्री डिफाइंड वैल्यूज़ के रिस्पेक्टिव रन करना सीखेंगे। और ये फिर आपका होमवर्क टास्क है कि आपने इसी प्रोग्राम को रीराइट करना है, लेकिन यूज़र से इनपुट लेनी है। आपने उसको डायरेक्टली वैल्यू देने की बजाय यूज़र से कहना है कि वो वैल्यूज़ एंटर करे और फिर उन वैल्यूज़ का अपने सम कैलकुलेट करना है और सम करने के बाद प्रिंट कर देना है। हम ये सारा कुछ अभी सीखते हैं कि हम ये किस तरह कर सकते हैं। अगेन जस्ट फॉर द रिवीजन, आप सीख सकते हैं कि आपका प्रोग्राम क्या किस तरीके से बनेगा। प्रोग्राम में सबसे पहले हेडर फाइल्स ऐड होंगी, हेडर फाइल्स के बाद आपका इंट मेन फंक्शन स्टार्ट होगा, मेन की ब्रैकेट्स होंगी, मेन की ब्रैकेट्स में सबसे लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगी, दैट इज़ रिटर्न ज़ीरो। तो आपके पास ब्रैकेट्स ओपन होने के बाद और रिटर्न ज़ीरो से पहले आपने वो सारा का सारी फंक्शनैलिटी लिखनी है जिसमें आपके पास ये फर्स्ट 4 स्टेप्स शामिल हैं। ओके, दिस इज़ योर प्रोग्राम जिसकी हम बात कर रहे हैं, द वेरी सिंपल प्रोग्राम ऑफ एडिशन। आपके पास ये बहुत सिंपल प्रोग्राम है, लेकिन इसके हर एक छोटे कॉन्सेप्ट को आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, तभी आप आगे कंटिन्यू कर सकेंगे कि किस तरीके से ऑपरेटर्स काम करते हैं और हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हमने सबसे पहले कुछ हेडर फाइल्स ऐड कर ली, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम एंड यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ये 2 हेडर फाइल्स हम लोगों ने ऐड कर दी। उसके बाद हमने अपना मेन फंक्शन स्टार्ट कर दिया, इंट मेन, उसकी करली ब्रैकेट स्टार्ट की मेन फंक्शन की बॉडी बनाने के लिए, और यहाँ से लेकर लास्ट लाइन तक बॉडी क्रिएट हो गई। क्योंकि इंट था तो हमने कुछ रिटर्न करना है, सो वी रोट रिटर्न ज़ीरो एज द लास्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ आर मेन फंक्शन। क्योंकि जब एक बार रिटर्न ज़ीरो की लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है, जब रिटर्न इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है, तो उसके बाद ये फंक्शन ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है। अगर हमने रिटर्न इंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर रिटर्न इंस्ट्रक्शन, अगर मैं इस रिटर्न ज़ीरो के बाद, अगर मैं इस रिटर्न इंस्ट्रक्शन के एंड पर अगर मैं इस रिटर्न इंस्ट्रक्शन के बाद में कोई इंस्ट्रक्शन लिखती हूँ, फॉर एग्जांपल सी आउट और हेलो कुछ भी, तो ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही रिटर्न हो जाता है तो इसका मतलब है ये इस फंक्शन से बाहर वापस निकल गया है। तो उसके बाद कुछ भी लिखा है तो वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। ये हमेशा अपने रिटर्न के लिए याद रखना है। सो रिटर्न से जो कुछ भी हमने कोड करना है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके रिस्पेक्टिव हमने जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखनी है वो सारी की सारी रिटर्न ज़ीरो से पहले पहले लिखनी है। हमारे पास हमारे इस फंक्शन का, हमारे इस प्रोग्राम का टास्क क्या है कि हमने 2 वेरिएबल्स लेने हैं और उन 2 वेरिएबल्स के को इनिशियलाइज़ करना है और उनको डिफ़ाइन करना है, एंड देन हमने उनका सम डिस्प्ले करवाना है। सो हमने किस तरीके से किया, हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए पहले, और दोनों हमने एज अ एग्जांपल इंटीजर कंसीडर कर लिए हैं। इंट नंबर 1 नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया और उसको हमने डिफ़ाइन कर दिया है विद द 10। Now there is an important thing, that what is the difference between declaration and definition। वेरिएबल की डिक्लेरेशन का मतलब होता है वेरिएबल का क्रिएट करना, मींस वेरिएबल का नाम बताना और उसकी डाटा टाइप बताना, एंड फॉर एग्जांपल उसके आगे मैं सेमीकोलन लगा दूँ तो ये मेरे पास क्या हो गई है, उसकी डिक्लेरेशन हो गई है। और फर्स्ट टाइम जब मैं इस वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करूँगी, दैट इज़ नंबर 1, वही सेम वेरिएबल इज़ इक्वल टू 10, कि मैंने इस वेरिएबल को क्या वैल्यू दे दी है, 10 वैल्यू दे दी है, तो इट मीन्स दिस इज़ डेफिनेशन। ठीक है, ये आपने क्या की हुई है, ये आपके वेरिएबल की डिक्लेरेशन है और नीचे आपके पास आपके वेरिएबल की डेफिनेशन है। सॉरी फॉर द मिस स्पेलिंग, ओके, डिक्लेरेशन। सो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको डिफ़ाइन कर दिया है किस वेरिएबल के वैल्यू के साथ, 10 वैल्यू हमने उसके अंदर सेव करवा दी है। यहाँ आपने एक चीज़ और ख्याल रखनी है कि ऊपर क्योंकि नंबर सारा का सारा मैंने स्मॉल लेटर्स में लिखा है, तो अब मेरे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन है कि मैं इसके बाद जहाँ भी इस वेरिएबल को यूज़ करूँगी तो मैं इसको स्मॉल एन से ही करूँगी। अगर मैं ये लाइन एज इट इज़ प्रोग्राम में रन कर दूँगी तो मेरा कंपाइलर एरर देगा
कि वो कहेगा कि अनडिफाइंड वेरिएबल, क्योंकि उसके लिए नंबर 1 एंड दिस नंबर 1 दोनों डिफरेंट हैं, क्योंकि वो डिस्टिंग्विश कर देता है, दोनों को डिफरेंट कंसीडर करता है। सो हमें इसको भी क्या करना पड़ेगा, स्मॉल से ही लिखना पड़ेगा। नंबर 1 इज़ इक्वल टू 10, हमने इसको 10 वैल्यू दे दी, फिर एक और वेरिएबल डिक्लेयर एंड साइमल्टेनियसली एक ही लाइन में उसको डिक्लेरेशन भी कर दी और डेफिनेशन भी कर दी उसकी, इंट नंबर 2 इज़ इक्वल टू 5। तो ये हमने इसको 5 वैल्यू असाइन कर दी है। अब हम लोगों ने क्या डिस्प्ले करना है स्क्रीन पे, इन दोनों नंबर्स का सम डिस्प्ले करना है। तो हमारा जो भी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है हम उसको डायरेक्टली किसी सी आउट इंस्ट्रक्शन में भी राइट कर सकते हैं, और हम चाहें तो उस आउटपुट को जो उस रिज़ल्ट को किसी एक अलग से वेरिएबल में सेव भी कर सकते हैं। हमने कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं बनाया हुआ सम का, तो हम क्या करते हैं कि फ़िलहाल एज इट इज़ सिर्फ और सिर्फ उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देते हैं। सो वी आर गोइंग टू राइट द इंस्ट्रक्शन सी आउट। सी आउट के अंदर हमने अब क्या लिख दिया है, हमने पूरा का पूरा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसके अंदर लिख दिया है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पहले एग्जीक्यूट होगा, मींस पहले कैलकुलेशंस होंगी सारी, और जो भी रिज़ल्ट आएगा इस एक्सप्रेशन का वो रिज़ल्ट सी आउट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। सो हमारे नंबर 1 में क्या है 10, नंबर 2 में क्या है 5, 10 + 5 इज़ इक्वल टू 15, तो 15 आपकी स्क्रीन पर एज आ आउटपुट रिज़ल्ट शो हो जाएगा। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि हमारे प्रोग्राम में क्या आपके पास आउटपुट आती है। सो दिस इज़ आवर प्रोग्राम ऑफ एडिंग 2 नंबर्स। हमने 2 वेरिएबल्स बनाए, उन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया, डिफ़ाइन किया, एंड देन हमने उनका जो सम है वो सम कैलकुलेट करवा के सी आउट करवा दिया, मीन स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया। एंड दिस इज़ आवर आउटपुट। हमारी स्क्रीन पे क्या आ गया है 15। ऊपर जो कुछ भी था बाकी सब कुछ हमारे कोड के पार्ट रहा है। यूज़र को सिर्फ क्या नज़र आएगा, यूज़र को सिर्फ और सिर्फ 15 नज़र आ रहा है। जो भी आपका प्रोग्राम रन करेगा उसको 15 आउटपुट डिस्प्ले होगी। हम टेस्टिंग के लिए वैल्यू चेंज करके टेस्ट कर लेते हैं कि लेट्स सपोज मैंने 5 को भी रिप्लेस कर दिया विद द वैल्यू ऑफ 10। मैंने इन दोनों को सम करना है। अब आपके पास स्क्रीन पे आउटपुट क्या आएगी, यस एग्जैक्टली हमारे पास आएगी 20। हम इसको एग्जीक्यूट रन करके कंफर्म कर लेते हैं क्या वाकई हमारे पास 20 आ रही है या नहीं। हमारे पास बिल्कुल 20 आंसर आ रहा है, क्योंकि ये 10 + 10 होगा, 20 कैलकुलेट होगा और 20 स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाना चाहती हूँ, सिर्फ 20 इज़ नॉट अ गुड थिंग, स्क्रीन के लिए इनफ नहीं है, यूज़र के लिए इनफ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 20 क्या चीज़ है। तो मैं स्क्रीन पे यूज़र को पूरा लिखा हुआ दिखाना चाहती हूँ कि 10 + 10 इज़ इक्वल टू 20। तो मुझे उसके लिए क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी, मुझे अपनी सी आउट इंस्ट्रक्शन में चेंजेस करनी पड़ेंगी, बिकॉज आई वॉन्ट टू चेंज माई डिस्प्ले। सबसे पहले मैं स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ दिखाना चाहती हूँ, जो चीज़ नंबर 1 पे सेव है, तो मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ नंबर 1। उसके बाद मैंने क्या स्क्रीन पे लिखाना है, मैंने प्लस का सिंबल बना हुआ दिखाना है। मैंने कैलकुलेशन नहीं करनी है, मैंने सिर्फ स्क्रीन पे प्लस का सिंबल बना हुआ दिखाना है। तो मैं उसको किस में लिखूँगी, डबल कोट्स के अंदर। जो चीज़ आपने एज इट इज़ स्क्रीन पे दिखानी हो, परफॉर्म ना करनी हो, वो आप किस में करते हैं, दैट इज़ इन योर डबल कोट्स। तो आप उसे डबल कोट्स में डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या दिखाना है, उसके बाद मैंने लिखाना है नंबर 2, कि मेरे पास नंबर 2 क्या है, दूसरा नंबर कौन सा है। दूसरा नंबर दिखाने के बाद मैंने क्या शो करना है, मैंने इक्वल का साइन शो करना है। इक्वल का साइन क्योंकि एज इट इज़ शो करना है, तो मुझे वो किस में लिखना पड़ेगा, डबल कोट्स के अंदर। इक्वल के बाद मैंने क्या चीज़ शो करवानी है, वो एक्चुअल कैलकुलेशन जो सम हो के आंसर आ रहा है, मैंने वो डिस्प्ले करवाना है। सो दिस इज़ माई फाइनल आउटपुट। तो आपके ख्याल में स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ आएगा, फर्स्ट नंबर 1 में क्या सेव है 10, फिर एज इट इज़ प्लस, फिर क्या सेव है नंबर 2 में अगेन 10 + 10, फिर इक्वल का साइन, और फिर जो उन दोनों का सम है वो हमारी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ देखिए हमारे पास पहले आ गया 10, फिर आ गया ये प्लस का सिंबल, फिर आ गया 10, फिर ये इक्वल का सिंबल, और फिर एक्चुअल में ये दोनों का जो एडिशन का एक्सप्रेशन है वो एग्जीक्यूट हुआ, जो आंसर कैलकुलेट हुआ वो आंसर आपका डिस्प्ले हो गया है। सो हमारे पास इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ आउटपुट्स स्क्रीन पे हम जनरेट कर सकते हैं और स्क्रीन पे शो कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इन वेरिएबल्स का जो सम है वो सम बजाय इसके कि आप एक्सप्रेशन को डायरेक्टली सी आउट के अंदर लिखें और वहाँ पे कैलकुलेट करें, आप चाहें तो वो उसका रिज़ल्ट किसी वेरिएबल में भी सेव कर सकते हैं और फिर उस वेरिएबल को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर सकते हैं। वो हम कैसे कर सकते हैं कि हम अपने चाह रहे हैं कि जो नंबर 1 प्लस हो किसके साथ, नंबर 2 के साथ, ठीक है, और इन दोनों का आंसर किसके अंदर सेव हो, एक हमारे पास अलग एक नया वेरिएबल बना देते हैं, इंट सम इज़ इक्वल टू।
यहाँ पे मे भी आपके माइंड में क्वेश्चन हो कि हम इसके आगे भी तो लिख सकते थे इज़ इक्वल टू समवन, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। ये आपके इक्वल ऑपरेटर की रिस्ट्रिक्शन है कि वो आपको ये मस्ट रिक्वायर करता है। क्या रिक्वायर करता है कि आपके पास जो भी इक्वल के राइट साइड वाली वैल्यू होगी वो आपके लेफ़्ट साइड के वेरिएबल को मिलेगी, राइट। अगर मैं इसके आगे सम लिख देती इज़ इक्वल टू सम, तो उसका मतलब होता कि सम की वैल्यू मैं इस एक्सप्रेशन को देना चाह रही हूँ। ऑब्वियसली सम के अंदर तो कोई वैल्यू ही नहीं थी और वो हम कैसे किसी एक्सप्रेशन को दे सकते हैं। एक्सप्रेशन का आंसर किसी वेरिएबल को देना है तो हमेशा आपने ये भी कोई भी एक्सप्रेशन सॉल्व करते हुए माइंड में रखना है कि हमेशा आपका राइट साइड पर एक्सप्रेशन होगा इक्वल के, ये आंसर कैलकुलेट होके किसको मिल रहा है, आपके सम के वेरिएबल को मिलेगा। आप चाहें तो सेम लाइन में लिख सकते हैं या चाहें तो आप एक अलग वेरिएबल पहले डिक्लेयर कर दें और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट लाइन में ये एग्जीक्यूशन कर दें। तो आपने एक वेरिएबल बनाया सम सेव करने के लिए और दोनों नंबर्स को सम करके किस में सेव कर दिया, इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया। और उसके बाद जहाँ डिस्प्ले करवाना था वहाँ कैलकुलेशन करने की बजाय आपने कहाँ क्या सेव कर प्रिंट करवा दिया, अपना सम का वेरिएबल प्रिंट करवा दिया क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी सम मौजूद है। यहाँ पे आपका कंपाइलर एरर दे रहा है। क्या बता सकते हैं कि एरर किसकी वजह से है? कैन यू आइडेंटिफाई दिस पर्टिकुलर एरर? ओके, इफ़ यू आर सेइंग इट इज़ द मिसिंग ऑफ सेमीकोलन देन येस यू आर राइट, क्योंकि हमने हर एक्सप्रेशन के एंड पे एक सेमीकोलन मेंशन करना होता है। यहाँ सेमीकोलन मिसिंग था तो हमारा प्रोग्राम हमें एरर जनरेट करके दे रहा था। अब जब मैं आउट करूँगी, सी आउट करूँगी, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? एग्जैक्टली द सेम आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ पीछे अपना एक टास्क करने की फंक्शनैलिटी चेंज की है, एक मेथड चेंज किया है काम करने का, लेकिन मैंने अपनी आउटपुट डिस्प्ले को उस रिस्पेक्ट में हमारी चेंज नहीं किया है। आपको हर प्रोग्राम को करने के लिए डिफरेंट मेथड्स होते हैं। आप एक ही प्रोग्राम 10 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। इस वजह से ये हमारे लिए बीइंग टीचर बहुत ईज़ी होता है आइडेंटिफ़ाई करना कि किस स्टूडेंट ने कॉपी किया हुआ है, किस स्टूडेंट ने खुद एफ़र्ट की हुई है। क्योंकि हर किसी का राइटिंग का स्टाइल, हर किसी का डिस्प्ले का स्टाइल, हर किसी का वेरिएबल नाम लिखने का स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। नाम नाम कोई यहाँ सम लिख सकता है, कोई एडिशन लिख सकता है, कोई यहाँ रिजल्टेंट लिख सकता है, कोई सिंपल रिजल्ट लिख सकता है। सो हर किसी का ब्रेन डिफरेंटली एक्ट करता है, डिफरेंट सोल्यूशंस प्रोवाइड करता है। सो आपके पास प्रोग्रामिंग में कभी भी एक सोल्यूशन नहीं होता मैथ के क्वेश्चंस की तरह। हमेशा डिफरेंट वेरिएशन, डिफरेंट वेज हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं टू सॉल्व समथिंग और टू डिस्प्ले समथिंग। ओके, हम लोगों ने ये प्रोग्राम अंडरस्टैंड कर लिया एडिशन का। बिल्कुल इसी तरीके से आप सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ के प्रोग्राम्स खुद से बना सकते हैं। आपका टास्क ये है कि आपने इस प्रोग्राम को रीराइट करना है, दोबारा से कंस्ट्रक्ट करना है और उसमें चेंजेस आपने क्या करनी है कि ये वेरिएबल्स जिनको हम प्री डिफाइंड वैल्यूज़ से डिफ़ाइन कर रहे हैं, इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, अब आपने इनको प्री डिफाइंड वैल्यू से इनिशियलाइज़ नहीं करना, बल्कि इसके आपने सी इन को यूज़ करते हुए यूज़र से वैल्यू लेनी है इन वेरिएबल्स के लिए और फिर जो यूज़र वैल्यू देगा उनका आपने सम डिस्प्ले करवाना है। दिस इज़ योर होमवर्क टास्क। सो वी गेट 15 आउटपुट। ये आपके इस प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो सारी की सारी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यू कैन गो थ्रू देम, आप इनको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। नाउ कम टू सम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हमारे पास प्रोग्रामिंग में कौन कौन से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है। वन अरिथमेटिक ऑपरेटर इज़ सिंपली प्लस। प्लस ऑपरेटर को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे? अगर हम लोग सिंपल मैथमेटिक्स में लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं? f+7। और अगर आप इसको C++ में लिखेंगे तो भी बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे कि f+7। तो ये आपका f जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल के अंदर 7 को प्लस कर देगा। देन वी हैव द सब्ट्रैक्शन, माइनस वेरिएबल। आप p वेरिएबल में से c वेरिएबल को माइनस करना चाह रहे हैं तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में माइनस हो जाएंगे और रिज़ल्ट आ जाएगा। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में या मैथमेटिक्स में हम कैसे लिखते हैं? bm लिखते हैं तो इसका मतलब होता है b m से मल्टीप्लाई हो रहा है, या फिर b स्पेस m लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास b और m आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लेकिन प्रोग्रामिंग में आपके कंपाइलर को नहीं समझ आ सकती सिंपल यूँ लिखने से कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आपको प्रोग्राम में हमेशा कैसे लिखना पड़ेगा? b
स्टेरिक एम, स्टेरिक सिंबल यूज़ होता है फॉर द मल्टीप्लिकेशन पर्पज़ इन प्रोग्रामिंग। मैथमेटिक्स में हम क्रॉस का सिंबल भी यूज़ करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन को, लेकिन प्रोग्रामिंग में सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ होगा, स्टेरिक। आप अपने कीबोर्ड पे देख सकते हैं कि आपके डिजिट 8 के ऊपर आपका ये कैरेक्टर रिप्रेजेंट हुआ होगा, दैट इज़ ऑफ स्टेरिक। देन हमारे पास है डिवीजन। हमारे डिवीजन के लिए प्रोग्रामिंग में क्या यूज़ होता है, दैट इज़ दिस फॉरवर्ड स्लैश। जिस तरीके से आप डिफरेंट बैक स्लैश यूज़ कर रहे थे, बैक स्लैश एन, बैक स्लैश टी, वो बैक थी क्योंकि उसकी डायरेक्शन बैक की तरफ होती है। डिवीजन के लिए फॉरवर्ड स्लैश यूज़ होती है, जिसको आप कह सकते हो कि जो टिल्टेड है टूवर्ड्स फॉरवर्ड, जो आगे की तरफ मुड़ी हुई है, वो आपके पास डिवीजन का सिंबल है। मैथमेटिक्स में या फिर आपके पास अलजेब्रा में आप किस तरीके से डिवीजन लिखते हैं, आप लिखते हैं x डिवाइडेड बाय y, x ऊपर होता है y नीचे होता है, या फिर आप डिवीजन के लिए क्या सिंबल यूज़ करते हैं, ये पर्टिकुलरली डिवीजन वाला सिंबल यूज़ कर सकते हैं। इन प्रोग्रामिंग आपको ना ये दोनों सिंबल्स यूज़ करना की परमिशन नहीं होती, बल्कि इसकी जगह आप क्या यूज़ करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश x डिवाइडेड बाय y। तो इसका मतलब है इन दोनों की आपस में डिवीजन हो रही है। देन फाइनल ऑपरेटर, दैट इज़ मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर आपने कम यूज़ किया होगा इन अलजेब्रा और मैथमेटिक्स। अगर आपने कहीं देखा हो तो आपने मॉड के रिस्पेक्टिव, मॉड के नाम से ये वेरिएबल देखा होगा, आर मॉड एस। आर मॉड एस की फंक्शनैलिटी किस तरीके से होती है कि ये आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है। मीन्स आपके ने सिंपल डिवीजन की है, डिवीजन में जो चीज़ आपके रिमाइंडर में नीचे आती है वो ये रिमाइंडर रिटर्न करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आर की वैल्यू है 5, ओके, एंड एस की वैल्यू है 2। तो आपके पास डिवीजन किस तरीके से होगी, 2 2s are 4 और नीचे रिमाइंडर क्या आया, 1। तो आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, 1 इसका आंसर आ जाएगा। सो दीज आर डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जिनको हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व डिफरेंट फार्मूलाज, टू कैलकुलेट डिफरेंट इक्वेशंस। तो ये हमारे पास हेल्पफुल होते हैं काफ़ी ऑपरेटर्स। दिस इज़ द सिंपल डिटेल और जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है, दैट इज़ योर मल्टीप्लिकेशन के लिए आपका स्टैरिक यूज़ होगा, डिवीजन के लिए आपके पास ये स्लैश यूज़ होगी। मॉडुलस आपके पास किस लिए यूज़ होता है, टू रिटर्न द रिमाइंडर। रिमाइंडर आपको रिटर्न करेगा, फॉर एग्जांपल 7 mod 5, 5 1s are 5, आपके पास रिमाइंडर 7 माइनस 5 क्या बचा, 2, तो ये आपके पास रिमाइंडर आंसर आ गया। ओके अब हम डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सीख लेते हैं कि ये एक्चुअली कैसे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे आपके पास एक्सप्लेन हुआ है कि आपके पास लेट सपोज आपने एक एक्सप्रेशन लिखना है a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। अब ये डिवाइडेड बाई 3 अगर आप चाह रहे हैं कि ये इन सब का सम हो और सम से डिवाइड हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोग्राम को बताना पड़ेगा कि a प्लस बी प्लस सी होल, ये सब कुछ इकट्ठे है, ये पहले होना चाहिए, और फिर जो इसका आंसर आए उस आंसर को आपने डिवाइड करना है 3 के साथ। तो आपको ये एक्स्ट्रा स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करनी पड़ेंगी अपने एक्सप्रेशन में। अगर आप सिंपल इस तरह एक्सप्रेशन लिख देते हैं अपने प्रोग्राम में, तो आपका कंपाइलर से क्या मीनिंग लेगा कि ये 3 सिर्फ सी से डिवाइड हो रहा है, सिर्फ सी को डिवाइड करना है 3 से, और जो आंसर आए उनको प्लस कर देना है ए और बी में। सो इट्स अप टू यू कि आपके पास क्या इक्वेशन है और आप उसको फिर कैसे कन्वर्ट करते हैं इनटू प्रोग्रामिंग एक्सप्रेशन। जब भी आपके पास कोई एक्सप्रेशन होगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए आपके ऑपरेटर्स की डिफरेंट प्रेसिडेंस होती है। प्रेसिडेंस का मतलब है उनकी प्रायोरिटी होती है, कौन से ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज़्यादा है, किसको पहले एग्जीक्यूट करना है, किसको उसके बाद एग्जीक्यूट करना है, और किसको उसके बाद एग्जीक्यूट करना है। दिस इज़ योर प्रायोरिटी लिस्ट। आपके पास जब भी कोई एक्सप्रेशन होगा तो सबसे पहले क्या चीज़ सॉल्व होगी, ये स्मॉल ब्रैकेट्स। ऑब्वियसली स्मॉल ब्रैकेट्स का अपना तो कोई परफॉर्म फंक्शनैलिटी नहीं है, इनको यहाँ रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि इन स्मॉल ब्रैकेट्स में जो कुछ भी लिखा हुआ होगा वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा। लेट्स कंसिडर दिस लास्ट एग्जाम्पल। जैसे हमने ये लास्ट लाइन में कहा था कि आपके पास ये जो स्मॉल ब्रेसेस के अंदर हुआ है जो भी एक्सप्रेशन है, सबसे पहले वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद फिर कोई और एक्सप्रेशन यूज़ होगा। स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर भी उसके बाद क्या रूल फॉलो होगा कि कौन से एक्सप्रेशन पहले होंगे, या स्मॉल ब्रैकेट्स के अलावा जो भी आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या यूज़ होगा, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस ऑपरेटर। यहाँ पे डी मैथ्स रूल अप्लाई नहीं होगा, बल्कि आपके पास ये सारे के सारे इक्वल लेवल के हैं और आपने इनको अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू लेफ़्ट टू राइट।
लेफ़्ट टू राइट एक्सप्रेशन में जो चीज़ पहले आएगी वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी और जो चीज़ बाद में आ रही है वो बाद में एग्जीक्यूट होगी। तो आपने लेफ़्ट टू राइट चेक करना है, जो चीज़ पहले आ रही है इनमें से वो पहले यूज़ हो जाएगी और जो बाद में आ रही है वो उसके बाद एग्जीक्यूट होगी। जब सारी की सारी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस आप कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद आपके एक्सप्रेशन में क्या बच जाएंगे? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी दोनों सेम लेवल के हैं और ये कैसे एग्जीक्यूट होंगे? अगेन लेफ़्ट टू राइट, जो पहले आएगा इन दोनों में से लेफ़्ट साइड पे वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसके बाद जो राइट साइड पे आएगा वो उसके बाद एग्जीक्यूट होगा। सो दीज आर आर रूल्स। अगर आपके पास लेट सपोज ब्रैकेट्स के अंदर भी ब्रैकेट्स हैं तो इनर ब्रैकेट्स की प्रेसिडेंस ज़्यादा होगी। मीन्स आपके पास एक स्मॉल ब्रेसेस है, ए मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें सबसे पहले क्या एग्जीक्यूट होगा? जो इनर ब्रैकेट है, इनर ब्रैकेट है बी प्लस सी की, सबसे पहले बी प्लस सी एग्जीक्यूट होगा, बी प्लस सी कैलकुलेट होगा और उनका जो आंसर आएगा वो आपका ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये आपके पास टोटल फाइनल एंड पे आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू दिस एक्सप्रेशन के हम लोग इनको कैसे सी प्लस प्लस में लिखेंगे। लेट सपोज आपका अलजेब्रा में ये एक्सप्रेशन है, दैट इज़ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई डिवाइडेड बाई 5। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये 5 किससे डिवाइड हो रहा है? पूल इन सब के सम से। सबका सम पहले कैलकुलेट होगा, जो आंसर आएगा उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, ना कि हम सिर्फ 5 को ई से डिवाइड करना चाहते हैं। हम ऐसे नहीं करना चाहते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्मॉल ब्रेसेस यूज़ करनी पड़ेंगी। m इज़ इक्वल टू स्मॉल ब्रेसेस a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, कि सबसे पहले इनका सम कैलकुलेट हो और फिर उस सम का जो आंसर है वो आंसर डिवाइडेड हो जाए किससे? 5 से। सो हमें प्रोग्रामिंग में इसको इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज़ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। यहाँ पे एम एक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब हम इसको सी प्लस प्लस में लिखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? स्टेरिक। y इज इक्वल टू एम स्टेरिक एक्स प्लस बी। अब ये जब एग्जीक्यूट होगा तो कैसे एग्जीक्यूट होगा? सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी किसकी थी? मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या मॉडुलस की। डिवीजन और मॉडुलस तो इस ऑपरेटर में हमारे पास नहीं है। हमारे पास इस ऑपरेटर में क्या है? दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, m मल्टीप्लाई होगा x के साथ, उसका जो भी आंसर आएगा वो फिर उसमें b प्लस होगा और जो फिर फाइनल आंसर आएगा वो किसको मिल जाएगा? y को। इक्वल इक्वल की प्रेसिडेंस सबसे लास्ट है, सबसे आखिर में जो फाइनल आंसर कैलकुलेट होगा वो फिर इक्वल के थ्रू आपके राइट साइड वाले वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्रेशन इज पी आर मॉड्यूलस क्यू प्लस डब्ल्यू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। तो हम इसको कंपाइलर में अपने एडिटर में कैसे टाइप करेंगे? हम लिखेंगे z इज़ इक्वल टू पी आर से क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम लिखेंगे p मल्टीप्लाई बाय आर, देन मॉड्यूलस q, उसके बाद डिवाइडेड बाय q, उसके बाद एडिशन प्लस w डिवाइडेड बाय x, w को हमने डिवाइड किया x माइनस वाई और हमने फिर माइनस वाई कर दिया है। अब ये एग्जीक्यूट किस तरह से होगा? इसकी एग्जीक्यूशन का सीक्वेंस क्या होगा? हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस सीक्वेंस में एग्जीक्यूशन होगी, पहले क्या सॉल्व होगा और उसके बाद क्या सॉल्व होगा। ये आपके पास एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में हमने क्या कहा था कि सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है? मल्टीप्लिकेशन की, मॉड्यूलस की और डिवीजन की। इसका मतलब है अभी प्लस और माइनस तो सबसे पहले स्टेप पे सॉल्व नहीं होने, पहले स्टेप पे इन तीनों में से कोई सॉल्व होना है। इन तीनों में से फिर कौन सा सॉल्व करें? तो इन तीनों में से अपने लेफ़्ट टू राइट यहाँ पहले से शुरू करना है और आगे चलते जाना है। जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा। सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है? मल्टीप्लिकेशन, तो ये फर्स्ट नंबर पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास इन दोनों का जो आंसर आ जाएगा वो आंसर के साथ हमें क्या कंबाइन कर रहा है? दैट इज़ मॉडुलस। सेकेंड नंबर पे क्या सॉल्व हो जाएगा? मॉडुलस ऑपरेटर। प्लस नहीं होगा उसके बाद फिर आगे, क्योंकि डिवीजन आगे मौजूद है, डिवीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा है। फिर तीसरे नंबर पे डिवीजन एग्जीक्यूट हो जाएगी। जब डिवीजन भी कैलकुलेट हो जाएगी तो आपके पास क्या बच जाएगा? एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी किस सीक्वेंस में फिर अप्लाई होंगे? लेफ़्ट टू राइट, के जो पहले आएगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। पहले क्या आया? प्लस, तो फोर्थ नंबर पे हम एडिशन को सॉल्व करेंगे, देन माइनस वाई, उसके बाद हम लोग फिफ्थ नंबर पे सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। और जब ये सारा पूरा कैलकुलेट होकर आंसर बन जाएगा वो उस आंसर को हम जी को आखिर में 6 नंबर पे जेड को या जी को असाइन कर देंगे।
Let's suppose we have a second degree polynomial equation y is equal to ax square plus bx plus c. हम इस इक्वेशन को अगर हम C++ में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? आप अपने पास पेपर्स पे लिखिए कि ये किस तरीके से लिखी जाएगी। ओके, लेट्स सी कि आपने क्या लिखा है। हमारे पास इक्वेशन क्या थी? y इज इक्वल टू, एज इट इज़ हमने लिख दिया y इज इक्वल टू, हम इसी के नीचे मैं इसको मेंशन कर देती हूँ ताकि मेरे पास आपको समझाने के लिए मुझे आसानी रहे। ओके, सबसे पहले y था, हमने y एज इट इज़ लिख दिया, y इज इक्वल टू a हमने लिख दिया, उसके बाद है एक्स स्क्वायर। स्क्वायर का या तो आप कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं या फिर स्क्वायर कैलकुलेट करने का इजी मेथड क्या होता है कि उसी नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास स्क्वायर आ जाता है। तो हमने वो मेथड फ़िलहाल यहाँ पे यूज़ कर दिया है कि a मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर है, मीन्स x 2 टाइम्स है, तो हमने लिखा x मल्टीप्लाई बाय x ताकि x का स्क्वायर कैलकुलेट हो सके। देन प्लीज़ प्लस का सिंबल, प्लस ऑपरेटर, उसके बाद b किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? x से, सो b स्टेरिक x, देन प्लस एंड देन c। नाउ टेल मी कि आपके पास एग्जीक्यूशन कैसे होगी। कंपाइलर पहले क्या कैलकुलेट करेगा और उसके बाद क्या कैलकुलेट करेगा, क्योंकि कंपाइलर आपके पास एक मशीन है, उसने सीक्वेंस में एट अ टाइम हमेशा सिर्फ एक ऑपरेटर अप्लाई करना है। जब उसका आंसर कैलकुलेट हो जाए तो वो फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर पे मूव करेगा। सो फर्स्ट इज़ ए, हमें पता है स्टैरिक की प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है, तो लेफ़्ट टू राइट सबसे पहले स्टैरिक, पहला स्टैरिक ए मल्टीप्लाई होगा एक्स के साथ, फिर जो आंसर आएगा वो मल्टीप्लाई होगा सेकंड एक्स के साथ, उसके बाद फिर प्लस नहीं होगा, उसकी बजाय आगे शिफ्ट कर जाएगा और क्या कैलकुलेट करेगा? बी मल्टीप्लाई बाय एक्स, थर्ड नंबर पे ये कैलकुलेट हो जाएगा, और फोर्थ नंबर पे फिर आपके पास अब सिर्फ एडिशन बच जाएंगी दोनों। और एडिशन को किस तरीके से, पहले कौन सी एडिशन होगी? जो पहले लेफ्ट साइड पे है ये फोर्थ नंबर पे होगी, फिर आपके पास लास्ट में कौन सी एडिशन होगी? जो आपके पास फिफ्थ नंबर पे है, ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, और फिर जो पूरा आंसर कैलकुलेट हो जाएगा तो उसके बाद इक्वल का ऑपरेटर यूज़ होगा और आपके राइट हैंड का एक्सप्रेशन किसको असाइन हो जाएगा? आपके लेफ्ट साइड के वेरिएबल को असाइन हो जाएगा। सो दिस इज़ आर way of writing our expression, our mathematical or algebraic expression into programming. Okay, let's solve a example for this equation. यही example है और हम कुछ values consider कर लेते हैं और उन values को use कर लेते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर कैसे कैलकुलेट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने x के लिए फर्स्ट वी हैड a के लिए हमने वैल्यू कंसिडर कर लिया है 2। लेट सपोज a के अंदर वैल्यू है 2, a के लिए हमने 2 लिख दिया। x की वैल्यू है लेट सपोज 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 उसका स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए। देन वी हैड b के लिए हमने 3 यूज़ कर लिया है, एंड देन हमारे पास दोबारा x था, x की वैल्यू हमारे पास 5 है, हमने 5 यूज़ कर ली, और लास्ट में हमारे पास था c, कोई भी कांस्टेंट, लेट सपोज 7, हमने 7 यूज़ कर लिया। ये हमारा होल एक्सप्रेशन है, हमने इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या पता है कि सबसे पहले क्या कैलकुलेशन होनी है? लेफ़्ट टू राइट, जो भी स्टैरिक मल्टीप्लिकेशन या मॉडुलस में से पहले आएगा। सबसे पहला एक्सप्रेशन क्या है आपके पास? 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कैलकुलेट होगा और उनकी जगह क्या लिख दिया? हमारे पास आंसर क्या आ गया? 10। ये हमारे पास नया एक्सप्रेशन बन गया। अब लेफ़्ट टू राइट देखें तो लेफ़्ट मोस्ट एक्सप्रेशन कौन सा है? दोबारा मल्टीप्लिकेशन का है। अब हम दोबारा मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 10 5 से मल्टीप्लाई हुआ, आंसर हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गया? 50। तो हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 5 की जगह क्या आ गया? 50। उसके बाद आपने लेफ़्ट टू मोस्ट देखें तो एडिशन है। एडिशन की प्रायोरिटी से ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी है, तो एडिशन को भी हम छोड़ देंगे, हम उसकी जगह क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या आंसर हमारे पास आ गया? 15। तो हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की जगह लिख दिया है 15, एंड एज इट इज़ प्लस 7 उसके साथ आ गया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एडिशन बच गई है, तो एडिशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? लेफ़्ट टू राइट। सबसे पहली एडिशन है 50 प्लस 15, तो 50 प्लस 15 को हमने सबसे ऐड किया तो आपके पास क्या आ गया आंसर? 65। ये हमारे पास फाइनल आंसर कैलकुलेट हो गया 65। 65 में जब हम 7 को प्लस करेंगे तो हमारे पास लास्ट कैलकुलेशन बच जाएगी ये 65 प्लस 7 की, और आंसर आ जाएगा 72, और फिर ये 72 वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी? y को। तो इस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप आप किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये सारे के सारी कैलकुलेशन या किसी भी एक्सप्रेशन को इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना आना चाहिए। आपके किसी भी अपकमिंग क्विज़ या फिर एग्ज़ाम में इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो सकता है कि आपको कोई एक्सप्रेशन दिया जाए
और उस एक्सप्रेशन के लिए वैल्यूज़ प्रोवाइड की जाएं और आपसे कहा जाए कि स्टेप बाय स्टेप शो करें कि ये एक्सप्रेशन प्रोग्रामिंग में कैसे एग्जीक्यूट होता है। Okay, now let's come to the concept of data conversion or the typecasting. Data conversion को typecasting भी कहा जाता है। Data conversion का क्या मतलब है कि when a different type of data is get assigned to a different type of variable, then conversion occurs. Conversion जब भी हम एक different तरह का data, for example integer का data किसी float को देने लगे हैं, integer का data किसी character variable के अंदर सेव करने लगे हैं, या कहीं पे भी जिस भी वेरिएबल को कोई वैल्यू मिलने लगी है वो उसकी प्री डिफाइंड डाटा टाइप से अगर डिफरेंट है तो वहाँ पे डाटा कन्वर्जन अकर होगी। डाटा कन्वर्जन दो तरीक़ों से अकर हो सकती है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ डाटा कन्वर्जन, इम्प्लिसिट कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट कन्वर्जन इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल टाइप कास्टिंग। कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग भी कहा जाता है। इम्प्लिसिट कन्वर्जन को इंटरनल कन्वर्जन या फिर इंटरनल टाइप कास्टिंग भी कहते हैं। इंटरनल टाइप कास्टिंग का क्या मतलब है कि दिस कन्वर्जन इज़ डन बाय कंपाइलर। बीइंग प्रोग्रामर हम कोई कन्वर्जन नहीं कर रहे, लेकिन कंपाइलर ऑटोमेटिकली कुछ डाटा कन्वर्जन्स करेगा क्योंकि उस वेरिएबल के रिस्पेक्टिव डाटा का चेंज होना ज़रूरी है। लेट्स कंसीडर दिस फर्स्ट एग्जांपल जिसमें हम एक इंटीजर एक इंटीजर वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं, को डिफ़ाइन कर रहे हैं विद द वैल्यू ऑफ 3.4। हम 3.4 देना चाहते हैं इस ए वेरिएबल को। ए की डाटा टाइप क्या है? इंटीजर। इसके अंदर तो पॉइंट वाली वैल्यूज़ नहीं आ सकती, तो आपका कंपाइलर ऑटोमेटिकली इस 3.4 को कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? इस इंटीजर में, और फिर ए को असाइन करेगा। नॉर्मल कन्वर्जन में वो क्या कन्वर्जन करता है कि पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू होती है उसको डिस्कार्ड कर देगा, उसको इग्नोर कर देगा, और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को ए को साइन कर देगा। सो ए के पास फाइनल आंसर क्या सेव होगा? सिंपल 3। सिमिलरली फ्लोट बी इज इक्वल टू 2। अगर मैं एक फ्लोट वेरिएबल बी को 2 वैल्यू असाइन करना चाह रही हूँ और इसके साथ कोई पॉइंट वाली वैल्यूज़ मैंने नहीं असाइन की हुई, तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली इस 2 इंटीजर कांस्टेंट के साथ 0.00 लगाएगा और इस बी को असाइन कर देगा। नेक्स्ट इज़ फॉर एग्जांपल मैं ये कांस्टेंट एक नंबर, एक होल नंबर है, ये किसी कैरेक्टर वेरिएबल को देना चाह रही हूँ। ऑब्वियसली ये 190 कोई कैरेक्टर तो नहीं है, इसको अगर कैरेक्टर भी कंसिडर करें तो इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, 1 अलग है, 9 अलग है, 0 अलग है। हमने इसको असाइन करना है टू अ सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि कुछ कन्वर्जन करनी पड़ेगी। अगर हम बीइंग प्रोग्रामर कुछ भी नहीं बताएंगे तो कंपाइलर हमारे लिए इम्प्लिसिट कन्वर्जन करेगा और इस 190 को किसी कैरेक्टर में कन्वर्ट करके, जो भी उसके पीछे बैकएंड पे कन्वर्जन चल रही हैं विद रिस्पेक्ट टू आस्की कोड हो सकती हैं, वो कन्वर्जन करेगा और सी को असाइन कर देगा। नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या है? दैट इज़ एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल टाइप कास्टिंग। मीन्स जो हमने फोर्सफुली प्रोग्रामर ने कंप्यूटर से करवाई है, खुद से कंप्यूटर नहीं कर रहा, खुद से कंपाइलर नहीं कर रहा, बट दिस कन्वर्जन इज़ फोर्सफुली डन बाय प्रोग्रामर। ये हम कैसे कर सकते हैं? सिंपलेस्ट मेथड क्या है हमारे पास कि जिस डाटा को हमने कन्वर्ट करना है तो हम उसके साथ उस ब्रैकेट में उस डाटा टाइप का नाम लिख देंगे जिसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे 3.4 इट वाज अ फ्लोट वैल्यू, वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू इंट वैल्यू, सो वी रोट इंट इन द स्मॉल ब्रेसेस just aligned with it, so it is followed by int. 3.4 will be converted into int or integer, and then this, after conversion obviously 3.4 become 3, and then this 3 will be assigned to a. Similarly in the next line, for example I want to use the above lines or continue with the above line. A is a variable which is of integer type. It contains the value what? 3. 3 cannot be saved in the character variable because 3 is a number, 3 is not a character. So I want to convert this number into a character. So I followed this variable with the data type written in the small braces, that is char. It means a need to be converted into character before get assigned to ch variable. So हम लोगों ने a हमारे पास पहले कैरेक्टर में कन्वर्ट होगा एंड देन इट विल बी असाइंड टू योर दिस ch वेरिएबल और आपके पास क्या असाइन हो जाएगा।
इन दोनों लाइनों में क्योंकि बीइंग प्रोग्रामर हमने यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है और हम उसे फोर्स कर रहे हैं कि इस डेटा टाइप में कन्वर्ट हो और फिर असाइन हो, तो इस वजह से इसको एक्सप्लिसिट कन्वर्जन या फिर एक्सटर्नल टाइप कास्टिंग कहते हैं।